hello, welcome to my channel, guys. So as you can see, we are trying something new, right? So in this video, you will be learning all kind of basic stuff about the stock marketing and all the simple kind of basics about the stock marketing. So if you're a beginner, you can learn all kind of stuff about the stock marketing. So in this video, you will be learning everything on the stock market. So watch this video till the end. So at first, we are having a special guest as Ravi Kumar Bhaiya. So he is the founder of RK Traders. So I welcome you, sir. And so please introduce yourself. Rohit, first of all, my name is Ravi Kumar Matre. I'm from Pune. I'm starting last year classes, my trading classes. And फील्ड में पिछले 4 साल से कर रहा हूँ ट्रेडिंग के. जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी से मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग का जर्नी. और अभी मैं खुद के क्लासेस अभी स्टार्ट किए लास्ट ईयर से चालू कर दिए. So we will start from the questions, guys. And the first question is the basic question. This one. So what do you think about the stocks? I mean, what do you mean by stocks? Give explanation. I mean, nice explanation for that. Stock meaning the supply of things that a company has for sales. Every company has their shares. They sell in the market, and you will be buy also like this. मतलब कोई भी शेयर्स कंपनी होती है तो उसको उसके स्टार्टअप के लिए उसको फंडिंग चाहिए तो वो उनके शेयर्स बेचती है और आप वो खरीद के वो कंपनी के लिए फंड रिलीज कर सकते हो इस तरह से. इसे स्टॉक कहते हैं. स्टॉक इज आल्सो नोन एज शेयर्स. So what is the basics needs to buy to buy or sell the stocks? You need a demat account. One at least you have demat account compulsory, and then you that platform through you buy or sell any company shares or stocks like this. So what is demat account, bro? Demat account it's a platform to any shares buy or sell. These are SEBI's कंसल्टेड रूल्स. मतलब ये क्या होता है कि जैसे बैंक अकाउंट होता है, बैंक के अंदर आप पैसे वगैरह स्टोर करके रख सकते हो, डिपॉजिट करके रख सकते हो, वैसे ही ये शेयर्स रख सकते हैं आप बाय करके परचेस करके ये डीमैट अकाउंट के अंदर रख सकते हैं. ऐसे बहुत सारे अभी आपने देखे होंगे कि सब ब्रोकर्स भी है जैसे एंजल, एपस्टॉक वगैरह वगैरह बहुत सारे आए हैं मार्केट के अंदर. तो ये डीमैट अकाउंट नेसेसरी है क्या? यस, इट्स कंपलसरी. ये होना ही चाहिए. So next one. So what are the basic fundamentals or rules should be followed for a beginner in the market? मतलब कुछ fundamentals ने तो rules ऐसे कुछ है क्या बिजनेस को मतलब मार्केट में स्टार्ट करने के लिए? Have rules means कोई भी काम करने के लिए रूल्स तो जरूरी होते हैं. जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हो या किसी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उसका जो कुछ भी रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या फॉलो करने तो पड़ेंगे ही. तो वही आप जो बिगिनर्स है उनको वही सीखने की जरूरत है. मतलब आप बिना सीखे ऐसे जाओगे तो विदाउट नॉलेज तो आपका उधर लॉस ही होने वाला है. इसलिए पहले आप मार्केट क्या है ये बातें सब सीख लीजिएगा, उसके बाद आप कर सकते हैं फाइनली. So in the stock marketing, any age restrictions or anything to a beginners or any can one buy this one? Okay, ages are necessary in this. Actually, account opening, that demat account opening required 18 plus age your. आणि देन मतलब आप जब 18 प्लस के हो जाते हो तभी ये अलाउड है इसके अंदर कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो. उससे पहले आप 18 के पहले आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, लर्न कर सकते हो. लेकिन आफ्टर योर 18 कंप्लीट एज देन यू ओपन डीमैट अकाउंट and now then you trade. So up to now we have got an idea that how the stocks will be going on what are the necessary items to be there to buy or to sell the stock, right? So now the next one is which stock is to prefer to buy and at what time and which kind of stock to be buy. So this is the most interesting one. So let's see what will be answer. Actually इट्स डिपेंड ऑन दैट स्टॉक. मतलब अभी कौन सा सीजन चल रहा है या फिर उसके बारे में क्या न्यूज आई है मार्केट के अंदर, तो उसके बेसिस पे चूज कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल के बेसिस पे चूज कर सकते हैं. टेक्निकल क्या शो कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करके अपन
हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शेयर बाय करना चाहिए या फिर कौन से टाइम में कब बाय करना चाहिए। ये टेक्निकली एनालिसिस से कर सकते हैं अपन बाइंग और सेलिंग का। और टाइम में से कुछ है क्या, मतलब इस टाइम से खरीदना है, इस टाइम से बेचना है, ऐसा कुछ है क्या? यस, दोनों ही कर सकते हैं। मतलब इंट्राडे भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं, इशू नहीं है। मतलब आपको जितने रिटर्न चाहिए, अगर एक कोई स्टॉक आपने खरीदा तो उसके अंदर आप क्या टारगेट क्या है आपका, बराबर वो टारगेट अचीव होने तक आप रुकने वाले हो, तो वो टाइम ड्यूरेशन कितना होने वाला है, 1 मंथ भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, या फिर 1 डे भी हो सकता है। 1 दिन के अंदर आपका जो टारगेट हिट कर चुका है तो आप एग्जिट हो सकते हैं या फिर होल्ड करके भी रख सकते हैं, इस तरीके से। So next one is, so most of the people think that the stock market is gambling. So what do you think about that? Gambling, when you play this trading in blind game, then it's also, it's gambling type. Yes, yes, you also say that gambling, because अगर आप blind खेल रहे, मतलब मार्केट का बारे में नॉलेज नहीं है आपको, कुछ कुछ भी नहीं है, पता नहीं है, और इसके अंदर डायरेक्टली एंट्री कर रहे हो आप, तो ये हाईली रिस्की है और लाइक गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग मतलब आप इसकी आदत भी लग सकते हैं, ये भी है, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर। So we have to see all kind of instructions and the rules before buying the stock, right? आपका अगर नॉलेज नहीं होगा इसके अंदर तो ये गैम्बलिंग ही बोल सकते हैं इसको, या फिर इमोशनली ट्रेडिंग। हाँ, अभी बढ़ जाएगा, थोड़ी दिन में बढ़ जाएगा। इमोशनली ट्रेडिंग इज ऑल्सो गैम्बलिंग टाइप। तो ये नहीं करने हैं अपने को, ये नहीं करना है इसके अंदर। फॉलो द परफेक्टली रूल्स एंड देन यू प्ले दिस ट्रेडिंग you perfectly, that's not gambling, type of gambling. Manage your risk and manage your profit, manage your targets. It's not gambling type. Yeah. Then it's not gambling. Next one. So most of the people thinks that in one night the money will be doubled. So is it really possible? And there will be, I mean, there is any case that money will be double and triple? What do you think? Yes, यस रोहित, यस इस ये मार्केट है बॉस, इसमें कुछ भी हो सकता है। डबल भी हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है, 20 टाइम्स भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही दिन के अंदर हो सकता है। इसके अंदर आपको एक दिन में भी हो सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, मंथली, ईयरली, लेकिन इट्स पॉसिबल। Yeah. So it is not possible for every stock, right? यस। So what do you think about the future and options and the IPO in the stock marketing? So give and explain, I mean, give an idea about that. Yes, yes. Future and option means dealing with contract. They also have expiries. Means यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलरली कंपनी के शेयर्स नहीं बाय करते, यहाँ पे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं ऑप्शन में और फ्यूचर में। तो उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अगर एक्सपायरी के अंदर अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो खरीदा वो क्रॉस हो गया, तो आपको वहां पे प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, इस तरीके से। और इसका वीकली, मंथली ऐसे एक्सपायरी डेट्स भी रहते हैं इधर। Yeah. So what do you think about IPO in the stock marketing, sir? आईपीओ इज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। मींस यहाँ पे क्या होता है कि जो कोई नई कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती है सीबी के अंदर, एनएसडी के अंदर, जो कंपनी नहीं रहती, जो नई कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है, वो उनके आईपीओ लॉन्च करती है। मतलब जैसे मतलब जो नई कंपनीज होती है वो उनके आईपीओ खोलते हैं, उनके शेयर्स कंपनी इसके अंदर लाती है, तो उसको हम आईपीओ बोल सकते हैं। उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, आप इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी टाइप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मिल जाएगा तो मिल सकता है, ऐसा ही। Yeah. So next one is most common one. So how much investment should be done for the beginner in the stock marketing? अभी ये चीज तो बहुत कॉमन हो चुकी है। मतलब शेयर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, आप कितने रुपए के शेयर्स खरीदे। प्रत्येक हर एक कंपनी अलग अलग होती है, तो उसके शेयर्स प्राइस भी अलग अलग, कोई 10 रुपए का होता है, कोई 100 रुपए का होता है, कोई 2000 का होता है, इस तरीके से। तो आपको जितने शेयर्स खरीदने हैं तो उसके मल्टीप्लाई बाय जितने अमाउंट लगती है वो नेसेसरी है। हार्डली आप अभी ग्रो ऐप ये वो
तो इसके जरिए आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 भी रुपीज इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। ऐसा कुछ अमाउंट फिक्स नहीं है इसका। Yeah. So next one is there any types in the trading? Types of trading, yes, in these trading types have currency, equity, commodity, and cryptocurrency include this market. So इसके अंदर currency के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी होती है, कमोडिटी मार्केट होता है, क्रिप्टो करेंसी, तो ये सब मार्केट के टाइप है, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। So which one gives more returns in a short term investment or long term investment? What do you think? I prefer a long term. Long term investment is really more than better short term. कैसे, जैसे कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक तुम्हारा टारगेट सेट होता है कि पर्टिकुलरली 10% रिटर्न, 2%, 15% रिटर्न, बट लॉन्ग टाइम इसका कुछ चांसेस नहीं है। 15%, 10% तो आएगी ही आएंगे, और इसके ऊपर भी बहुत सारे रिटर्न्स मिल सकते हैं। Yeah. इससे भी ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं, तो आई प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। Still many of us thinks that this mutual fund and the stock marketing are same. So what do you think about that? Actually, it is a matlab, you invest in that mutual fund, and that mutual fund companies are invest in stock. तो मतलब आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, और वो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कंपनीज के बारे में, स्टॉक के बारे में, और वो जो पूरा समझ के लेके फंडामेंटल टेक्निकली, उसके बाद वो खुद ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब वहां पे आपकी रिस्क कम हो जाती है, मतलब आपको खुद से एनालिसिस करना नहीं है। म्यूचुअल फंड की जो कंपनी होती है वो खुद एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देती है आपके पैसे। वहां पे एक पर्टिकुलर फिक्स रिटर्न भी बताए जाते हैं, 3%, 5%, 8%, इस तरीके से। So which one is more safer for investment in the mutual fund or the stock marketing? Actually, mutual fund is safe or not risky, but in stock market, highly risk and highly reward are like this. Yeah. हाईली रिस्क भी है और हाई रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर एक सेफ जोन है कि ज्यादा सेफ, उसके अंदर सेफ है कि वहां पे लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड के अंदर। To learn about the stock marketing and the strategies, any courses are available? Yes, many courses are available from basic to advanced level. I have also starting my classes, market trading classes. In these classes, I will teach you how to basic concept and advanced concept, chart preparation, candle preparation. ये सब आप सीख सकते हो, और सीखने के बाद लाइव ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हैं। जब मार्केट चालू होता है 9:30 से 3:30 बजे तक, तो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है ये भी टेक्निक आनी चाहिए। और इसके अंदर हम मनी मैनेजमेंट का भी बताते हैं आपको कि किस तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर कितने फंड्स रखने चाहिए, या फिर एफएनओ में कितना करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरीके से कोर्स मैंने बहुत अवेलेबल है। आपको ट्रूली जो कौन सा आपको समझ में आता है या फिर प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाएगी, तो ऐसा आप कोर्सेस कर सकते हैं। Yeah. So as you all know, we had a collaboration with Arcade Traders, right? So we also added this stock marketing course in our committee. So if you are interested, then you can ping me or you can message me also. So all the details will be in description box. Just have a look. Is really stock market is risky? We should invest in stock marketing or not? What do you think? इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी जैसे कि चल रही है मार्केट कंडीशन, मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है, तो इसको अगर आपको बीट करना है, इसके साथ चलना है, तो आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट ऐसे ही नहीं कि शेयर मार्केट में आ गए और किसी भी कंपनीज के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं। आपको टेक्निकली फंडामेंटली कंपनी के वैल्यूज सब पता करके उसके अंदर आप सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए।
So what are the basic steps or conditions to be followed to buy or sell in a stock marketing? आप किसी भी कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो पहले आपको सीखने की जरूरत है कुछ भी चीज। तो सीखने के बाद व्हेन यू लर्न ऑब्वियसली यू अर्न। तो पहले आपको नीड है कि सीखने की जरूरत है जो कुछ भी शेयर मार्केट है, क्या चल रहा है, कैसे चलता है, क्या वैल्यूज होते हैं, कहाँ तक मतलब कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है। तो ये पूरा पूरा मैनेजमेंट करके ही आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। Yeah. So next one is most common one, but many of think that stock market is illegal. We can't do. I mean, there is a lot of pressure. So what do you think? No, no, it's totally legal. Yeah. So in India, less than 2% of population are investing in stock marketing, as the survey of 2021. So you can say why this much less? आई गेस अभी ये जो परसेंटेज है थोड़े बढ़ चुके होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में के अंदर। खूब लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो अब 2% बता रहे, अभी वो इंक्रीज ऑब्वियसली इंक्रीज हो चुका होगा। और ऐसे ही जैसे कि अभी कुछ प्लेटफॉर्म भी उभर के आ रहे हैं, जैसे कि न्यूज या फिर यूट्यूब के ऊपर उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज शेयर किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अभी आगे जाके बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। अभी फिलहाल इसके पहले नॉलेज की थोड़ा कमी थी, शेयर मार्केट के बारे में इतना कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आप देख रहे कि हर ऑल ओवर यूथ जो है तो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है और वो खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और इंडिया के अंदर भी बहुत से अभी चल रहे हैं क्लासेस कोर्सेस। तो ये भी सही है कि अभी आगे जाके बहुत इंक्रीमेंट हो सकते हैं इसके अंदर। Yeah. So before buying any stock in the market, we should need any research to buy it. You buy before any stock, you also technically fundamentally research behind that particular stock, then you buy। जब आप बाय कर सकते हैं उसके बाद वो उस तरीके से आपके तरीके से ग्रो कर रहा है तो आप उसके अंदर स्टे कर सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं। या फिर आपका जो एसएल मतलब स्टॉप लॉस लगा के जितना आपका रिस्क है उसके बाद आप एग्जिट भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर से। टेक्निकली और फंडामेंटली और न्यूज बेस के ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड है मार्केट। तो ये सब चीजें रिसर्च करके ही आप कोई चीज के अंदर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Yeah. So what do you think to invest in stock marketing is preferable or not? We should invest in Yes, stock marketing or not? yes, of course. If you want to face rising inflation, then you must invest in share market. You need that. एक्चुअली जैसे अभी आप देख रहे हैं बैंक के अंदर आपने अगर फिक्स डिपॉजिट करके रख दिए तो वो साल के 6% 7% इंक्रीमेंट देता है आपको परसेंटेज से। तो मतलब ये तो ऐसा हो गया कि महंगाई से मतलब इंक्रीमेंट हो रही है तो उसके बराबर चल रहे हो। आपको अगर इससे फेस करना है, इससे मोर देन ग्रो करना है तो आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है आपके लिए। Yeah. So at last one and the final one. So say few tips or the tricks to a beginner to start a journey in the stock marketing. So what do you? आप बिगिनर हो तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले आप तो पूरा मार्केट सीख लीजिएगा। कि पहले तो क्या होता है कि आप नए हो, इंटरेस्टेड रहते हो, आप थोड़ा सा कैपिटल लाते हो, फंड लाते हो और फर्स्ट टाइम व्हेन यू ट्रेड जब आपका लॉस हो जाता है उसके अंदर तो आप शेयर मार्केट गंदा है, इसके अंदर लॉस होता है, ये वो चीजें बोल के छोड़ देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लॉस उठा रहे हो तो लॉस उठाने से पहले आपको पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करके कुछ कोचिंग लेनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग करना चाहिए शेयर मार्केट क्या है, क्लासेस ज्वाइन करके या फिर ऐसे नॉलेज लेना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ तो इसके अंदर आप ऑब्वियसली आप सीख सकते हो, आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आप अगर बिगिनर हो तो भी चलेगा, लेकिन पहले मार्केट समझ के आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा पूरा। Yeah. So this is all kind of basic questions about the stock marketing for a beginner, right? So still, if you are having any kind of questions, so just comment below, guys.
So after a brief discussion about the stock marketing, we have got a clarity that we should have a knowledge before investing, right? So for a knowledge, we have a courses on the stock marketing. So we will start this course as soon as possible. So if anyone interested, join the course, and all the all the details will be in description. Have a look. Yeah. थैंक यू रोहित टू इनवाइट मी टू योर चैनल। आप जो काम कर रहे हो मतलब लोगों तक ये जो सब चीजों की इंफॉर्मेशन हो कि जैसे कि शेयर मार्केट या फिर और आपके कंसेप्ट है मैंने देखे आपके यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप। अच्छा, और आपको आपके आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। Yeah. Thank you, Bhaiya. So that's it, guys. See you in the next video. थैंक यू सो मच।